Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes Current Affair Analysis. In this particular video, we will discuss August 19, The Hindu Delhi edition newspaper. So our first topic is about census, as no Supreme Court stay on publication of Bihar caste census or Bihar caste survey census data. So here the Bihar was conducting a caste survey or caste census, caste based census, and here it has already conducted and now it is publishing its report. So the timeline for this whole event was on June 6, 2022, Bihar issued a notification to conduct caste based census or survey at an estimated cost of 500 crore. Then on August 1, 2023, Patna High Court dismissed the petition, claiming that state had no right or competence to conduct the census. Then on August 6, 2023, the Bihar government completed its census and it started uploading the collated data. So this matter went to the Supreme Court, and here Supreme Court on Friday refused to stay the uploading of data collected in the recently conducted Bihar caste census. So this is the news. This is the nitty-gritty of the news. What is important for us is about knowing the term census and the history of census. So first we will try to understand about the census. Census or a decennial population census is basically a process of collecting, compiling and analyzing and disseminating the demographic, economic and the social data of all the persons living in a specified area. For example, if we talk about India or a country-wide census, so it will be in terms of India, or if we are talking about a specific state, so that particular state at a particular point of time, how many people are living, what are their like social or economic aspect, demographic aspect, that is what we call census. So we will discuss about the brief history of the population census of at India level. Okay, so we are discussing at India level or at country level the census. So talking about the brief history or brief timeline of this census. So the earliest mention of census is there in Rigved, and we also find mention in Ardhashastra and N.A. Akbari. Okay, so these are the three important books which talk about the term census. First, non-synchronous. First, non-synchronous census. That means it was held in few places. It took place in the year of 1872 under the Governor General Lord Mayo. Okay, so just remember the name. And the first synchronous का मतलब होता है कि हर जगह ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया के हर एक एरिया में जो सबसे पहला सिंक्रोनस सेंसस और पहला ऑर्गेनाइज सेंसस जो था वो हुआ था आपका 1881 में बाय W.C. Plowden. Just remember the name W.C. Plowden, and he was the census commissioner of India, and it occurred under the governorship of Lord Ripon. Okay, so just remember the name of Lord Mayo. Remember the first non-synchronous census, it was happened in 1872, and the first synchronous census which happened in 1881 under the Census Commissioner of India, that is the W.C. Plowden, and the Lord Ripon was the Governor General at that time. So now talking about like who is the person or who is the body which is authorized for conducting these census. So the responsible body for census in 1951 or until 1951, the census organization was set up on an
एडहॉक बेसिस, एडहॉक बेसिस मतलब होता है परमानेंट नहीं होगा, वो आपका टेम्पररी बेसिस पे, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी बेसिस। तो उसके लिए यहाँ पे एक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन को 1951 तक आपका स्टैब्लिश किया गया था। 1951 के बाद से लेके अब तक ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, it is coming under the Ministry of Home Affairs. He is responsible, or this office is responsible for conducting census. Talking about the legal backing or the articles through which the government can conduct the census. So in union list, it is a union list subject under article 246, and every census is conducted under the Census Act 1948. Okay, so just remember these two important points. And the confidentiality, like all the details, it will be confidential in nature, or whatever detail is confidential in nature, it will be guaranteed under the Census Act of 1948. Okay, so the information is not even accessible to the court of law. Like अगर आपका एक परसेंटेज बताना है तो वो आप परसेंटेज बता सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल डिटेल कि मैं कौन से क्लास से बिलोंग करती हूँ, मेरी क्या इनकम है, ये सारी जो पर्सनल डिटेल है ये आप शेयर नहीं कर सकते। बट एक रेशियो जो है वो आप बता सकते हैं कि इतना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो दलित्स का है, या इतना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो ब्राह्मण्स का है, तो ये सब आप बता सकते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस में। बट एक पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ये आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसस एक्ट 1948 ने ये इंश्योर किया है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट निटी-ग्रिटीज ऑफ द सेंसस. There are few major events which I would like to talk about because it's important from examination point of view regarding the census. So what are these major events? Fifth census or the 1921 census. Just remember the year, it is very important. It is the only census to witness a decadal population decline, और इस पॉपुलेशन डिक्लाइन को हम बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड. ओके, वैसे पॉपुलेशन हमारा हमेशा इंक्रीज ही हुआ है, बट इट वाज इन द ईयर ऑफ 1921 और ड्यूरिंग द फिफ्थ सेंसस दिस होल पॉपुलेशन वाज डिक्लाइन. देन इन द 11th census which happened in the year of 1971, there was an additional information on fertility for married women. ओके, जितने भी मैरिड वुमेन है तो उनका फर्टिलिटी का जो एक टर्म आया था वो 11th सेंसस में आया था. देन टॉकिंग अबाउट द 13th सेंसस व्हिच वाज हेल्ड इन 1991, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेसी व्हिच वाज बेसिकली चेंज्ड टू चिल्ड्रंस who can read and write and aged 7+. Earlier it was 4+. Okay, तो ये जो 7+ का डोमेन था ये आपका 13th सेंसस में चेंज हुआ है. देन इन द ईयर ऑफ 2001 और द 14th census, there was a tech front because at that time technology was developing and the uses of intelligent character reading was introduced. Okay, and in 15th census which happened in the year of 2011, there was notable fall in the case of empowered action group states noticed first time. Okay, so just remember these all important thing. The socio-economic caste based census जो है ये आपका first time 1931 में conduct करवाया गया था, and that is a very important aspect. So these are the important aspects related to the census. Okay, moving back to our newspaper and discussing the other important news. So here we have a very great news that is about the innovations in the healthcare which must be for the public good. So here, as we know, we have already discussed this in our yesterday's news analysis. So here G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट जो हुआ था, यहाँ पे बेसिकली आपका इनोवेशन के ऊपर बात की गई थी कि इनोवेशन इन द डिजिटल हेल्थ केयर
इट शुड बी ओपन फॉर द पब्लिक गुड, ओके। और साथ में यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी बात की गई थी। जो हमारे WHO के हेड हैं टेड्रोस, he talked about how to integrate traditional medicine into the domain of the other medicine also, ठीक है। इसके अलावा इनोवेशन की बात की गई है डिजिटल हेल्थ केयर में, दैट इट शुड बी ओपनड अप फॉर द पब्लिक गुड। और यहाँ पे G20 हेल्थ समिट हो रहा है, हेल्थ मिनिस्टर मीट हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है ये, गांधीनगर में हो रहा है। सो जस्ट नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड ऑल्सो गुजरात कैपिटल गांधीनगर, यहाँ पे हो रहा है आपका G20 हेल्थ मिनिस्टर मीट। और यहाँ पे बात की गई है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। इट विल बेसिकली अलाउ द कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ वाली कौन सी कंट्रीज हैं जो आपकी बेसिकली अभी डेवलपिंग है या आपकी अंडर डेवलप्ड है। तो ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, तो इनका जो गैप है हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करवाने में, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के को अचीव करने के लिए दिस इज अ वेरी नोबल स्टेप। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इंडिया इन इंडिया वी आर फॉलोइंग अ होलिस्टिक अप्रोच, वी ऑलरेडी नो। हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, that is about the antimicrobial resistance. What is the meaning of this term? For example, suppose an antibiotic we are taking to treat some specific disease which is caused by bacteria, but bacteria या ये जो pathogens होते हैं, pathogens मतलब क्या होते हैं, disease causing element। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, मतलब अपना जो जेनेटिक मेकअप है वो बहुत जल्दी चेंज करते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि वो अपना म्यूटेशन में ऐसा कर ले कि जो एंटीबायोटिक है जो हम अभी फिलहाल के लिए यूज कर रहे हैं वो शायद इन पे इफेक्ट ना करे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि जो माइक्रोब्स हैं दे आर बीइंग रेजिस्टेंट टू दीज मेडिसिन और टू दीज एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है ये बहुत बड़ा रिस्क है पब्लिक हेल्थ केयर में, और जितना भी फार्मास्यूटिकल है एडवांसमेंट है, बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं कि हमारा अचीव हो पाए फार्मास्यूटिकल लेवल पे, बट देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन जहां पे हम एक लेवल तक, थर्ड लाइन ऑफ मेडिसिन के ऊपर नहीं जा सकते हैं, उसके बाद कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल ही नहीं है। एंड पीपल आर शोइंग रेजिस्टेंस टू दीज एंटीबायोटिक्स ऑल्सो, एज वी नो इन द केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसमें आपकी बहुत कम मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इस बीमारी को ठीक कर सकती हैं। तो इसीलिए इन सब के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन उतनी ही है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, और जो आपके माइक्रोब्स हैं या जो आपके पैथोजेंस है वो बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहे हैं। सो दैट इज एन एडिशनल प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर गुजरात। ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में आपका स्टैब्लिश किया गया है। Moving further toward our next important article that is coming in from Chandrayaan 3, a very good news, like the lander is slowed upon and ये आपका lower orbit जो है वहां पे move कर रहा है। We have already discussed these news in our previous DNA session and this is also a news in transition. We will see August 20 और 23 तक आपका जब लैंड हो जाएगा लैंडर रोवर, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हियर बेसिकली दिस इज अ गुड न्यूज दैट वी आर गोइंग एज पर द प्लान। Moving further toward our next important article that is coming in from a very important area, that is Kachatibu. Okay, so here Tamil Nadu Chief Minister he calls for retrieving Kachatibu. So we will discuss about the island of Kachatibu. First, I want to show you the photo of this particular island, that is here. So here you can see this is Kachatibu. Here it is Tamil Nadu. Here it is Sri Lanka. So the island of Kachatibu, it is basically a tiny landmass or tiny uninhabited. यहाँ पे कोई रहता नहीं है. It is an uninhabited landmass. और ये आपका पार्क स्ट्रेट पे, पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट जो है किस किस के बीच में है, बिटवीन इंडिया एंड
श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो पाक स्ट्रेट है, इसके बीच में ये आपका कच्चाथीवू आइलैंड लोकेटेड है। ये आइलैंड पहले इंडिया के पास था, लेकिन इट वाज सीडेड टू श्रीलंका in the year of 1974 by Indian government. And here there are a lot of detailed debates and there are a lot of protests in Tamil Nadu, क्योंकि यहाँ पे दो दिस आइलैंड may not be of that much significance, but यहाँ पे इसका significance culturally और आपका ethically, हम कहते हैं ethnically या historically, ये significance बहुत ज्यादा है इस आइलैंड का। इसके अलावा जो फिशरमैन हैं उनकी लाइवलीहुड का भी यहाँ पे बात आता है, क्योंकि तमिलनाडु जो है इस आइलैंड को श्रीलंका से वापस लेने की बार बार बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फिशरमैन जाते हैं तो अगर वो इस एरिया में, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज एज देयर ओन लैंड, यहाँ पे चले जाते हैं तो श्रीलंका की जो पुलिस है या जो आपका मिलिट्री है वो इनको कैप्चर कर लेती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज एन एडिशनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो आइलैंड है इसके बार बार रिट्रीवल की बात कर रहा है तमिलनाडु, और ये चाहता है कि श्रीलंका वापस से कच्चाथीवू दे दे तमिलनाडु को। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग that where it is located, the location and the nearby area. For example, श्रीलंका का जाफना है, ये आपको पता होना चाहिए। कोलंबो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे located है। That's why this map has been inserted over here. Okay, so just remember about the location. Moving back to our newspaper, now we will discuss an article coming in from our editorial section. So here the article is talking about the issue is not about India's GDP but its JDP. Okay. So here the Union Finance Minister, the author is saying that Union Finance Minister, as we know, there has been a no confidence motion which has been passed in the parliament, and the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, she talked about the India's GDP, it is growing to a double digit, and she is also saying that India's economy is the world's fastest economy, and many of the reports of the foreign institute like the IMF, the Morgan Stanley, they are saying that India's economy is continuously growing. So the former Union Finance Minister P. Chidambaram, he countered Ms. Sitharaman by pointing out the annual GDP growth rate under the United Progressive Alliance or the UPA, it was higher. So this is a political debate, we don't need to go into that, but what is important for us is what the author is saying. यहाँ पे author का कहने का मतलब है, एक तरफ से वी आर सीइंग इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, दैट इज अ गुड थिंग, ये आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता, फिगर्स कांट बी नेगेटेड, सो डेफिनेटली इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग, दैट इज अ गुड थिंग. But along with that, there is one more problem which we see, that the MG Narega, the employment under the MG Narega, it is also increasing. So here the author is talking about the contrast, कि if the GDP is growing, then there should be many times, many number of employment और job should be available. तो यहाँ पे जो MG नरेगा है इसमें तो employment घटना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी employment बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इंडिया की रियल जीडीपी की बात करें तो 5.3% जो एनुअल जीडीपी है वो ग्रो हो रहा है, और साथ में जो एमजी नरेगा का काम है उसका जो डिमांड है वो भी 5.4% से ग्रो हो रहा है. सो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग इमेज कि यहाँ पे कैसे ये दोनों चीज आपकी ग्रो हो रही है. जब हम इसके डिटेल में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जितनी भी आपकी अपर क्लास जॉब्स हैं जो जीडीपी ग्रो हो रही है, जिसके चलते आपकी जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं, दैट इज बीइंग टेकन बाय द अपर सोशल क्लास. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो हायर कास्ट है दे कंस्टिट्यूट नियरली 3/4 ऑफ द ऑल द फॉर्मल सर्विस सेक्टर जॉब, और जीडीपी जो ग्रो कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, सो इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल दीज पीपल. 80% वर्कर जो एमजी नरेगा के हैं दे बिलोंग टू द दलित क्लास, द ट्राइबल क्लास और द बैकवर्ड क्लासेस. तो यहाँ पे ये ऑथर का सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है इसके बारे में है. उसके बाद ऑथर दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अबाउट द सेमीकंडक्टर इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमिक इनिशिएटिव. जो आपका इनिशिएटिव लिया जा रहा है उनका इकोनॉमी पे कैसे अफेक्ट होगा, कैसे वो जीडीपी को अफेक्ट करेगा, कैसे वो जीडीपी को बढ़ाएगा,
एट द सेम टाइम यहाँ पे जो एमजी नरेगा का है लोग हैं या ऐसे जो लो स्किल वाले लोग हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिसेंटली देखा है माइंस एंड मिनरल्स बिल, इसमें आपका प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। उसके अलावा वी हैव ऑलरेडी सीन सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया बहुत ज्यादा अपना स्टेप ले रही है सेमीकंडक्टर प्लांट्स एस्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे या इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं फॉरेन कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के लिए इंडिया के अंदर, that will be also not helpful for these people who belong to the lower class. Why? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज हाईली ऑटोमेटेड, और अगर यहाँ पे जॉब क्रिएट भी होंगी तो वो आपके हाई स्किल लोगों के लिए होगी, इट वुड बी फॉर द लो स्किल्ड पीपल। सो हेयर वी आर ओनली काउंटरिंग द हेडलाइन और द हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, बट we are basically rather than merely chase the headline GDP growth, तो इसीलिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑथर है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल की बात कर रहे हैं, दैट इज द माइंस एंड द मिनरल बिल्स। तो यहाँ पे रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर को माइन मिनरल जो आपका एक्सट्रैक्शन है माइनिंग है उसका राइट दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, इसके बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन मिनरल्स की या रेयर अर्थ मेटल्स की, तो ये मिनरल जो होते हैं दे आर द फाउंडेशन स्टोन फॉर मेकिंग दीज सेमीकंडक्टर, सो दीज टू थिंग आर लिंक्ड। ओके, अगर मिनरल जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी जाके सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना ने इस पूरे मार्केट में अच्छा खासा अपना डोमिनेशन बना के रखा है सप्लाई चेन में, और यहाँ पे वो सारी मिनरल्स जो हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को रिफाइन करता है, और साथ में इट इज ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद द अफगानिस्तान, क्योंकि जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है नूरिस्तान के पास वहां पे पाया गया है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लीडियम और अदर मिनरल जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर हम जोग्राफिकली बात करें तो आपका जो ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है या जो आपका अफगानिस्तान का टोपोग्राफी है दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू इंडियाज टोपोग्राफी, या हमारा जो इंडिया का टोपोग्राफी है ये भी आपका थोड़ा मिलता जुलता है इस एरिया से। सो वी कैन से दैट जो आपका अफगानिस्तान या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिनरल डिपॉजिट मिल रहा है, सिमिलर वेल्थ शायद इंडिया के माउंटेन्स में या इंडिया के पास भी प्रेजेंट होगा, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10% ही इसको एक्सप्लोर किया है। देयर इज अ लॉट ऑफ नीड कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है सो दैट वी कैन अचीव समहाउ द आत्मनिर्भरता इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ओके, सो यहाँ पे ये जो चेंज लाया गया है दैट इज गुड, दैट कैन हेल्प द पीपल। लाइक अर्लियर देयर वाज बेसिकली ज्यादा इंक्लूसिव होगा ये जो आपका माइनिंग है बाय द प्राइवेट सेक्टर, इट विल बी मोर इंक्लूसिव because it will absorb a lot of people from the oppressed class, OBCs, SC, ST जो होंगे ये लोग माइनिंग वाले एरिया में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, and definitely this will help India to actually achieve a more inclusive GDP instead of headline GDP growth. So this was the crux of this whole article. Now as there has been in news मनरेगा बहुत दिनों से न्यूज में आ रहा है, सो वी विल डिस्कस अबाउट द निटी-ग्रिटीज ऑफ द स्कीम अबाउट द एमजी नरेगा और मनरेगा। ठीक है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस इज द फुल फॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मनरेगा, यूजुअली हम मनरेगा बोलते हैं। और ये जो आपका इंडियन लेजिस्लेशन था इट वॉज इनेक्टेड ऑन August 25, 2005। ये बेसिकली आपका लीगल गारंटी देता है दैट देयर विल बी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल year to the adult member of any rural household who is willing to do the public work related to specifically unskilled manual work। यहाँ पे कोई skilled manual work नहीं करवाया जाता है, unskilled manual work करवाया जाता है।
100 दिन के काम की आपकी गारंटी दी जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में। जो भी आपके रूरल एरिया में ऐसे लोग हैं काम करना चाहते हैं तो उनके लिए स्कीम को बेसिकली लॉन्च किया गया था। Ministry of Rural Development. This is the nodal ministry. It is basically monitoring the entire implementation of this scheme, and this act was basically introduced with an aim of improving the purchase power of the rural people, and in order to have like people who are living below the poverty line or those who are unskilled or semi skilled, they can also have some good purchasing power, and it basically attempts to bridge the gap between rich and poor of the country. 1/3 जो यहाँ पे वर्कफोर्स होगा that will be comprised by the women, और यहाँ पे आपका जितने भी एडल्ट मेंबर होंगे उनको अपना नाम लिखना है, एज बताना है, एड्रेस देना है, और ग्राम पंचायत जो होगी वो आपका पूरा रजिस्टर होल्ड करेगी, और ग्राम पंचायत का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है वो ये काम करेगी। उसके अलावा ग्राम पंचायत का और क्या क्या काम है, सबसे पहले तो जो भी एप्लीकेशन आएगा मनरेगा काम के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। जॉब कार्ड्स जो हैं वो इशू करेगा ग्राम पंचायत, वेरीफाई करेगा कि एक्चुअली में वो इंसान अनस्किल्ड है या उसको काम की जरूरत है या नहीं, ये सब आपका वेरीफाई किया जाएगा, और आपका अलॉट करेगा 15 दिन। जब आपने रजिस्टर करवा दिया है तो उसके 15 दिन के भीतर में आपको काम मिल जाएगा, और अगर आपको काम देने के लिए असक्षम है सरकार तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट वेज मिलेगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, तो ये आपको मिलेंगे। सो दीज आर द nitty-gritties of this whole article and of this whole scheme. Moving back to our newspaper, now we will discuss in detail about the next important article that is coming in from the India-Japan Tech Diplomacy. सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा न्यूज में है। रिसेंटली इंडिया ने सेमीकॉन समिट भी करवाया था, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, ये भी मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। सो यहाँ पे इंडिया और जापान ने कोलैबोरेट किया है सेमीकंडक्टर्स में, और ये एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन मैकेनिज्म बनाना चाहती है फॉर दिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ओके, सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, equipment research, establishing resilience, these will help India and also Japan to achieve a major goal regarding the technology. तो यहाँ पे एक डील साइन हुई है क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो स्पेशलाइज्ड चिप बनाने के लिए ये डील साइन हुई है, और यहाँ पे जो आपका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है वो स्टैब्लिश करवाया जाएगा, और इस पार्टनरशिप में बेसिकली आपका टेक्निकल नॉलेज, रिसर्च, इनोवेशन बिटवीन द इंडिया एंड जापानीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज ये आपका ट्रांसफर होगा, और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी, और टोक्यो और न्यू दिल्ली दोनों ही यहाँ पे आपके फोरफ्रंट में रहेंगे सेमीकंडक्टर एडवांसमेंट। तो ये जो आपका एम है, ये जो आपका पार्टनरशिप है, दैट इज इन लाइन विद इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड जापान सोसाइटी 5.0 विजन। ठीक है, ये दोनों इनिशिएटिव याद रखिएगा, इंडिया का मेक इन इंडिया और जापान का सोसाइटी 5.0 विजन, because here these two will share a goal on the technological self-reliance and innovation driven growth. और ये जो आपका साइन हो रहा है bilateral agreement, that is also in synergy with the Americans partnership. America is also helping, अमेरिका का अपना एक मिशन है US चिप्स मिशन और साइंस एक्ट 2002, जिसके थ्रू अमेरिका बहुत ज्यादा काम करना चाहता है सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट पे और सेमीकंडक्टर के यूजेस पे। तो यहाँ पे इंडिया और अमेरिका ने ICET, आपको याद होगा ये भी डिस्कस किया था, ICET इनिशिएटिव जो है इसके ऊपर दोनों ने साइन किया था, इंडिया और यूएसए के बीच में है, और यहाँ पे ये जो आपका ICET है ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे काम करेगा। सो इन लाइन विद दैट यहाँ पे जापान के साथ भी इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है। इसके अलावा न्यू दिल्ली इज ऑल्सो सेट टू साइन एन एग्रीमेंट विद जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी, एंड दिस विल हेल्प बेसिकली also an investment by the Micron Technology and Applied Materials to set semiconductor unit
and Research Development Center in India. So these are the important initiatives. ये जितने भी इनिशिएटिव यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। Here we have basically news coming in from the World Affairs section and we will discuss the news that is there in the world section. So here Xi Jinping to pay state visit to South Africa and he will attend BRICS summit next week. तो सबसे important point यहाँ पे क्या है कि ब्रिक्स समिट आपका कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जोसेनबर्ग में आपके अभी ये गए हैं, ही विल पे विजिट, और यहाँ पे डिप्लोमेटिक बैटल ग्राउंड होगा जहाँ पे आपके ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज हैं दे विल कम एंड दे विल डिस्कस इंपॉर्टेंट issues. Okay, so these were the important article from today's newspaper. I hope you liked this session. If you like this session, then definitely like and subscribe to our channel. Thank you for being here.